Hello and welcome to Kalam IAS. We have launched a new channel dedicatedly for the state PCS examination. So now you are watching this video on the new channel Kalam PCS. So first of all, please do subscribe this channel to get the latest update of all our videos and content and important announcement regarding the state PCS specifically for the BPSC as your exam is approaching. So we are running a successful program, Eklavya program, which is dedicated for the BPSC 68. Okay, so this current affairs series is part of our Eklavya program, and please subscribe this channel to get the latest update, and also do subscribe to our Telegram channel, which is also by the same name, Kalam PCS. Okay, so to get the important PDFs and important announcement regarding the 68 BPSC examination. So as आप सब लोगों को पता है कि करंट अफेयर की क्लासेस का अक्टूबर नवंबर की वीडियोस हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं, and those are really very comprehensive videos regarding the October November current affair, and going by the importance of the October November month, because I can assure you around 60% question will be from the October November current affair only. So I have comprehensively covered the October November current affair in that video, so please go and watch those videos again if you haven't watched, and if you have watched then do revise them on the double speed. Okay, and you can also download the PDF of that current affair from our Telegram channel Kalam PCS. So now the remaining current affair I have tried to convert them into PDF. So these are the most important 250 PDF MCQ question, most important 250 MCQ questions which I mentioned in this PDF. Okay, so I tried to cover your current affair of remaining August, September and December and January till January 15. So this PDF, which is inclusive of 250 MCQ questions, will cover the August, September and January, December and January 15 current affair. So please do watch this video, okay, to get an idea and this MCQ question, these MCQ questions are very important for you from your 68 BPSC perspective. Okay, so चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं आपके 68 BPSC के लिए, एंड एज हम लोगों को पता है कि अपने जो BPSC के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सिन्हा अलग ही फॉर्म में हैं भाई अपने जो हैं, और वो डेली पे ट्वीट करके जो है लोगों की एंग्जाइटी को बढ़ाते जा रहे हैं. एनीवे बेसिकली ही इज़ डूइंग इट टू डायरेक्टली टेल यू, तो आपको अपने आंख और कान खुले रखने हैं और उनके ट्वीट को ऐसे इग्नोर नहीं करना है. प्लीज स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली. द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज ट्वीटिंग ऑन डेली बेसिस to aware you that please beware that the pattern might be changed this time. Okay, the nature of the question which the BPSC has been asking till now, you might find something new, something different than vis-a-vis the nature of the question in the 68 BPSC. So the thing is, as it is rightly mentioned, this game is of the relativity. Even if you will find the question paper very difficult, please don't bother in the examination hall, because that will be difficult for everyone else. Okay, so ultimately those who will remain calm in that situation and perform better by applying their mind and their logic will sail through successfully in that examination. So the only thing which matter is to hold your nerves in be calm and be patient, and don't bother, don't be anxious in the examination hall by seeing a difficult question. And one thing is that the pattern will be the same. I mean, the number of question will be 150. On addition to that, BPSC introduced the negative marking system, and on addition to that, the daily tweet of the BPSC chairman indicating that there will be some different pattern in the nature of the question. So आप लोग समझ सकते हो कि 150 क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे, उसमें 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं. अब उसमें से अगर आप जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन को आप एनालिटिकल बना दोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दोगे, या फिर आप क्वेश्चन के नेचर को डिफिकल्ट बना दोगे, तो सबसे बड़ा जो इश्यू आने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट का. So it's my humble request that please do not avoid this time management wali thing if you really want to clear this 68 BPSC examination. Okay, on addition to that, the less number of vacancies are further adding to the misery of this examination. As we all know that number of vacancies are less, so the cutoff might go in the upward direction. And इस situation में अगर आप जो है टेस्ट पेपर नहीं लाके जा रहे हो, and going by the indication of the present chairman, the examination, there are high chances कि आप जो 150 क्वेश्चन पूरे ढंग से ना कर पाओ. ओके, और क्वेश्चन को छोड़ना इज अ क्राइम इन दिस सिचुएशन. तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप जो 150 क्वेश्चन वन गो में लगाने की कोशिश करो. कितने स्टूडेंट होंगे आप अपने आसपास अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ के देखो कि क्या उन्होंने 2 घंटे में डेली एक टेस्ट पेपर लगाया है. वो 20 क्वेश्चन लगा लेंगे, 30 क्वेश्चन लगा लेंगे. आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन लगाओ, उसी तरीके से लगाओ जो आपका एक तरीका है.
अगर नहीं है तो अपना तरीका आइडेंटिफाई करो, आपको एक इटरेशन में लगाना है, आपको 2 इटरेशन में लगाना है, आपको 3 इटरेशन में लगाने हैं। इटरेशन का मतलब यह है कि आपको पहली रीडिंग में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरी रीडिंग में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और तीसरी रीडिंग में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपका एक आइडिया सेट पैटर्न बन जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। You are not having the luxury to do your experiment in the examination hall. Whatever you have to do, please finalize your strategy before the examination hall. And how will you finalize that? Just by doing the practice of more and more mock test. Okay, and I'm telling you, if you will solve daily at least one mock test till your 10th of the February, you will be more than comfortable, and you will be crystal clear in your approach, in your strategy, that how you will deal in a real examination situation. Okay, so do that, please don't and avoid it at your own risk. मेरा आपसे यही सजेशन है कि डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो, और अपनी एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, कितनी रीडिंग्स में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने हैं, किस तरीके क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से आप करते जाओ। ठीक है, ताकि आप जो एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो करंट अफेयर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 250 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसा कि आप सभी जो अखबार पढ़ते हैं उनको पता होगा कि अभी एम्स के डेटाबेस पे एक साइबर अटैक हुआ था, दैट्स अ रैंसमवेयर। ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि एम्स के डेटाबेस को अटैक करके उसको हाईजैक कर लिया, और उसके बाद में वो उन्होंने जो 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की। ठीक है, तो अभी अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि अभी फिलहाल भारत के किस हॉस्पिटल पे एक साइबर अटैक हुआ, या कहाँ पे साइबर अटैक हुआ, तो एम्स के डेटाबेस पे। और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि 3-4 दिन तक, 2-3 दिन तक अराउंड जो है एम्स की फंक्शनिंग कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गई थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया, या इसके अलावा जितनी भी स्मार्ट लैब्स हो गया, बिलिंग्स हो गया, या इसके अलावा जितनी भी डिजिटल हॉस्पिटल सर्विसेज होती हैं सारी कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, तो बाद में उसको रिस्टोर कर लिया गया था, और जो ई हॉस्पिटल सिस्टम जो डेटाबेस है इस पे एम्स वर्क करता है, उसको एनआईसी के द्वारा बनाया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। विच इंस्टीट्यूशन विल शिफ्ट इट्स एडवांस सुपरवाइजिंग मॉनिटरी सिस्टम टू दक्ष। ओके, तो अभी क्या हुआ, आरबीआई ने दक्ष प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लिया है साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट को से बचने के लिए। तो जो अभी अगर दक्ष प्लेटफॉर्म पे कौन से इंस्टीट्यूशन ने स्विच किया है, तो आरबीआई। ओके, इसका काम क्या हुआ, आरबीआई की जितनी भी फंक्शनिंग होंगी, जितनी भी डिजिटल फंक्शनिंग होंगी, दैट विल बी डन ऑन द दक्ष प्लेटफॉर्म। ओके, एंड दैट इज द साइबर अटैक सील्डेड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा हम सबको पता है G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से तैयार कर लेना। G20 कहाँ पे हो रहा है, G20 की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, G20 से पहले कहाँ पे हुआ था, G20 के बाद कहाँ पे होगा, G20 कंट्री में कौन कौन से मेंबर हैं। चाइना G20 का मेंबर नहीं है, आप याद रखना, और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, G20 का मोटो क्या है, ठीक है, इंडिया का G20 का मोटो क्या है, G20 का जो लोगो है उसमें कौन क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इस पर तैयार करके जाना अच्छे से। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे G20 है, तो अभी साइंस 20 करके जो एक प्लेटफॉर्म है उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे बनाया गया है, तो दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ISC बेंगलोर में बनाया गया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज डेवलप्ड अ न्यू स्कीम टू मॉडर्नाइज ओवर 1000 स्मॉल स्टेशंस ओवर द कमिंग ईयर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कीम? तो इस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 1000 ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है उनको मॉडर्नाइज करने का प्लान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह अनाउंस्ड 20 दिसंबर टू सेट अप वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैन्योइंग एकेडमी इन टेहरी। तो टेहरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आप सबको पता है टेहरी बहुत बड़ा डैम भी है टेहरी में, टेहरी जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह रिटायरमेंट अपॉन द कंक्लूजन ऑफ हिज राज्यसभा टर्म, हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील, हु हैज एग्ज्यूम्ड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ VSNL हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82, ही वाज फॉन्डली कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट। ब्रजेंद्र कुमार सिंगल, he was also known as
द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, बीएसएनएल के चेयरमैन थे, उनकी भी डेथ हुई है, विजेंद्र कुमार सिंघल, बीएसएनएल, बीएसएनएल नहीं, विदेश संचार निगम लिमिटेड। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे, कंफ्यूज मत हो जाना, एकनाथ शिंदे अभी फिलहाल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पॉपुलरली नोन एज द दरवाजा ऑफ दक्षिण बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, तो बुरहानपुर, हमने अभी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, बुरहानपुर बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू एग्जीक्यूट और बिकम द फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, ओके, सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। बुरहानपुर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, ऑल्सो नोन एज द दरवाजा ऑफ दक्षिण। नेम द रिनाउंड गजल सिंगर हु डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 82, सो दिस इज भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हो गई, ही वॉज द रिनाउंड गजल सिंगर, ओके। Which Indian state has been named as Time list of world's greatest place 2022? Which Indian state has been named on the Time list of world's greatest place 2022? The list includes the 50 most extraordinary and mesmerizing destinations across the world. So the answer is Kerala and Ahmedabad. So the answer is Kerala and Ahmedabad. Okay, Kerala and Ahmedabad has been included into the 50 most extraordinary and mesmerizing destination across the list, released by the Times magazine. In which state PM नरेंद्र मोदी recently inaugurated देवघर एयरपोर्ट? देवघर एयरपोर्ट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झारखंड में इनॉग्रेट किया है, तो झारखंड में देवघर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, सब लोगों को पता होगा। अभी दलेर मेहंदी का नाम क्यों चर्चा में रहा? दलेर मेहंदी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए 2 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा। 19 साल के एक जो 19 ईयर ओल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में, ओके, 19 साल पुराना केस था, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 2 साल की सजा दी गई दलेर मेहंदी को। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज बीन रिटेन्ड एज द बीजेपी लीडर ऑफ राज्यसभा, तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को लीडर ऑफ राज्यसभा बीजेपी ने बनाया गया है, ठीक है, उनको रिटेन कर रखा है, पहले भी थे वो जो है। नेम द क्रिकेटर हु इज नाउ द फास्टेस्ट इंडियन टू रीच द 150 विकेट माइलस्टोन, तो मोहम्मद शमी हिंदुस्तान के सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, एंड दिस इज द जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 150। सबसे जो पहले नंबर पे नाम आता है वो नाम आता है अफगानिस्तान के बॉलर हैं राशिद खान, वो भी सबसे फास्टेस्ट 150 विकेट टेकर है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, तो स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इनसे पहले कौन थे उसको अभी देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो मुख्तार अब्बास नकवी, हु हैज रिजाइंड एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मुख्तार अब्बास नकवी ने रिजाइन कर दिया है और इसका एडिशनल चार्ज अपना स्मृति ईरानी को दिया गया है, ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें तो नेम द एथलीट पॉपुलरली नोन एज द पयोली एक्सप्रेस हु रिसेंटली टुक ओथ एज द राज्यसभा एमपी, ओके, तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से जो जानी जाती हैं उनका नाम, और जिनको कि अभी राज्यसभा में मंत्रालय दिया गया है उनका नाम है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा वाज आल्सो द चीफ गेस्ट एट द पटना हाफ मैराथन, ओके, सॉरी वो अंजू बॉबी जॉर्ज सिंह, सॉरी, तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से राज्यसभा की इनको मेंबरशिप दी गई है, ठीक है, तो ये है पीटी ऊषा। नेम द 21 ईयर ओल्ड फ्रॉम कर्नाटका हु हैज वाज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ओके, तो सी वो सिनी सेट्टी, सिनी सेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का अवार्ड दर्जा दिया गया है। ऑन विच डे द डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज ऑब्जर्व्ड, तो इसका आंसर है क्या, 4 जुलाई, ओके। इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स कहाँ पे, मंकी पॉक्स का केस कहाँ पे दर्ज किया गया है, तो उसका आंसर है केरला। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, उसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनको दिक्कत ना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना आंसर में जो है हिंदी में ही डिस्कस करूं, ठीक है। तो इन फर्स्ट a new blood group has been founded in India, okay, which is also the rarest in the world. What is the name of this unique blood group? तो EMM नेगेटिव जो यूनिक ब्लड ग्रुप है वो इंडिया में अभी डिस्कवर किया गया है, दिस इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड। Who has become the third Indian cricketer captain to win ODI series in the England? तो रोहित शर्मा has become the third Indian captain to win the ODI series into the England. आप सब लोगों को पता है कि रोहित शर्मा अभी इंडिया के तीनों टीम फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं, इनसे पहले विराट कोहली साहब थे। Which Indian city has been declared as the first cultural and tourism capital of the SCO for the year 2022-23? So this is the star marker question, okay. So and this is not the new question, okay. You must have been knowing this question that Varanasi is the answer of this question. SCO capital वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है।
तो नेम द वेटरन इंडियन शूटर हु क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन जुलाई 18, 2022 बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल इन द मेंस स्कीट शूटिंग फाइनल इन द चैंगमोन साउथ कोरिया। तो नाम है उनका मेरज अहमद खान, मेरज अहमद खान। ओके, हाउ मच परसेंटेज ऑफ GST कंज्यूमर विल हैव टू पे ऑन प्री पैक्ड लेवल फूड आइटम्स लाइक आटा, पनीर एंड कर्ड। तो कितना है, 5% का GST लगेगा इनके ऊपर अब प्री पैक्ड फूड आइटम से। पहले नहीं लगता था, पहले 0% था और उस पर काफी विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो GST कब आया, GST किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया, ठीक है, और एक साल एक मतलब अभी ओवरऑल GST का कितना कंट्रीब्यूशन है अपने ओवरऑल टैक्सेशन में, ये सारी चीजें आप अब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द MD and CEO of Bombay Stock Exchange who has been appointed by the SEBI as the next chief of National Stock Exchange। उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE के चेयरमैन आशीष कुमार चौहान। ओके, नेम द नेवीज Kilo class submarine which was decommissioned from service at Visakhapatnam after 35 year in service। तो आंसर है INS सिंधु ध्वज। 35 साल बाद INS सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया है। ओके, तो नेम द गवर्नर ऑफ मणिपुर हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ जगदीश धनखड़। तो LA गणेशन को एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन अभी आप कमेंट में बताइए कि फुल टाइम वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। ओके, which country with which country India has signed a memorandum of understanding MOU to reintroduce the cheetah in the country after nearly 7 decades। तो आपको आंसर पता है, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से हमने 8 चीते मंगाए थे, 5 जो है फीमेल थे, 3 मेल थे। ओके, तो नामीबिया के साथ में हमने MOU साइन किया था, अफ्रीकन चीता। ओके, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। Which state has become the first in the country to connect all registered commercial vehicle equipped with the vehicle location tracking device विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो कि अपने ऑल रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विद द व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ओके, विच स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अमंग मेजर स्टेट। तेलंगाना हैज बीन प्लेस सेकंड एंड हरियाणा थर्ड। तो नीति आयोग का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2022 का, उसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, दूसरे नंबर पे आपका तेलंगाना है और तीसरे नंबर पे आपका हरियाणा है। बिहार की इसमें कितनी रैंकिंग है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बताओ भाई बताओ। अगर नहीं पता, अगर याद है दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज गुड, अगर नहीं याद है तो प्लीज डू इट गूगल राइट नाउ। ओके, एंड टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो नीति आयोग का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, कर्नाटका पहली रैंकिंग मिली है उसको। हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो सच्चिदानंदन KR को, सच्चिदानंदन KR 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। हु वॉन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर द फिल्म सुराराई पोट्टुरू। सुराराई पोट्टुरू जिसको हिंदी में उड़ान मूवी करके रिलीज किया गया था। तो बेस्ट एक्ट्रेस हैं अपर्णा बाला मुरली। Which female wrestler has been nominated for the United World Wrestling Rising Star of the Year honor? अंतिम फंगल को ये अवार्ड दिया गया है, अंतिम फंगल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विच स्टेट UT हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट जॉब्स। तो इसका आंसर है आसाम। आसाम ने इंडस्ट्री टूरिज्म सेक्टर को, इंडस्ट्री टूरिज्म सेक्टर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। टूरिज्म सेक्टर इंडस्ट्री। अभी गन्ने से गुड़ बनाने को भी एक इंडस्ट्री सेक्टर का दर्जा दिया है, किस राज्य ने दिया है, बिहार ने दिया है। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द AI पे चर्चा, AI डायलॉग इवेंट टू एग्जामिन द सिग्निफिकेंस एंड वेज फॉर अलाउइंग AI एक्सेस टू द हाई क्वालिटी डेटा सेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI पे चर्चा ऑर्गेनाइज किया, इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ओके, ऑन विच डेट नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज द किसान दिवस वॉज ऑब्जर्व। तो दैट इज ऑब्जर्व ऑन 23 दिसंबर। ओके, तो 23 दिसंबर को नेशनल
ऑन विच डे नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज द किसान दिवस वॉज ऑब्जर्व? तो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन 23 दिसंबर किसान दिवस, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 टू इवेलुएट, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द अर्बन लोकल बॉडीज ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ अक्रॉस देयर की पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अभी सिटी फाइनेंस रैंकिंग निकाली है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच union ministry launched the national mobile monitoring system app to bring more transparency and ensuring the proper monitoring of the scheme, digital capturing of the attendance of worker employed under MGNREGA through NMS has been made universal from January 1, 2023। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है इन्होंने, किस लिए लॉन्च किया है? टू एंश्योरिंग प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम्स, मनरेगा वगैरह की स्कीम में, ओके। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी अभी 720 मेगावाट का मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट which was implemented with assistance from India was recently handed over to the Drick Green Power Corporation Limited। The hydroelectric project is located in which country? तो ये भूटान में है। कौन सा है? ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, ओके, डीजीपीसी, इंडिया के सहयोग से बना है ये, और ये भूटान में स्टैब्लिश किया गया है। नेम द बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर हु डाइड ऑन December 29, 2022। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज हिंदी फिल्म्स लाइक बोल रहा था बोल, लाडला, रेडी एंड भूत। तो आंसर है नितिन मनमोहन। नितिन मनमोहन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे, वो जो कि 29 दिसंबर को जिनकी मृत्यु हो गई। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया गया है। विच स्टेट विल होस्ट द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? मध्य प्रदेश। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? 11 फरवरी 2023 को। आपका जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हो चुके होंगे, और कहाँ पे हुए होंगे? वो भारत के मध्य में एक राज्य है मध्य प्रदेश, ओके। अब भूलोगे नहीं भाई, भूलना नहीं है, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। खेलो इंडिया यूथ गेम इज अ डिफरेंट थिंग, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। नेशनल गेम इज अ डिफरेंट थिंग, तो इन चीजों में कंफ्यूज मत हो जाना। 36 नेशनल गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। बिहार को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। कौन कौन सी चीज में मिले थे? 7 रग्बी, और एक और कौन सा था उसमें, मुझे बताओ। दूसरी चीज, 37th नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो वो गोवा में आयोजित होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने टिप्स पे होनी चाहिए, और रिकॉल करते रहो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर लगते हैं उसकी अलग से नोट्स बना लो कि भाई ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, और उसको फिर बार बार रिवाइज करो, ठीक है। आपको जब भी आपको इस वीडियो को देखते टाइम पे आपको जो भी याद आ रहा है, लिंक कर पा रहे हो आप जो, तो अपना तुरंत या तो गूगल कर लो या फिर अपने नोट्स को खोल के देखो, ठीक है। ऑन विच डेट वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ द 4 साहिबजादे ऑफ गुरु गोविंद साहिब जी अटेंड मार्टारडम ऑन 17th सेंचुरी, इन द 17th सेंचुरी। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 25 दिसंबर के एक दिन बाद। तो याद रखना 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके एक दिन बाद सिख ने अपना जो है ये जो एक होली डे के तौर पे मनाना स्टार्ट किया। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद साहिब जी के जो बेटे थे 4, वो शहीद हो गए थे। तो उनके जो नाम, जैसे कि जोरावर सिंह एक नाम था, फतेह सिंह एक नाम था, तो ये उनके जो उनको मार्टरडम को सेलिब्रेट करने के लिए ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तारीख है 26 दिसंबर, 25 दिसंबर के एक दिन बाद, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज बीन अप्रूव्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर रिलेटिंग टू द ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेम के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, MEIT, मैथी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज डेवलप्ड अ न्यू स्कीम टू मॉडर्नाइज ओवर 1000 स्मॉल स्टेशन ओवर द कमिंग ईयर, ओके। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीटेड है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो 1000 स्टेशन को मॉडर्नाइज करेगी। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर? तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
उडुपी, ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटका, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर उडुपी कर्नाटका, ठीक है। Who has been appointed as the chief executive officer and chairman of the railway board? तो अनिल कुमार लाहौटी, अनिल कुमार लाहौटी क्या है ये भाई साहब, ये भाई साहब है चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। नेम द फ्रेंच ऑथर हु पास्ड अवे ऑन 4 दिसंबर 2022, ही वाज वेल नोन फॉर द बुक्स लाइक फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत अच्छी शानदार किताब है जो इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, उन्होंने पढ़ी नहीं होगी तो सुना जरूर होगा। तो और इसके अलावा सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता के ऊपर है, एंड द फिफ्थ हॉर्समैन, तो इनका नाम था डोमिनिक लेपियरे, डोमिनिक लेपियरे इनकी जो अभी फिलहाल डेथ हुई है, ओके। At which place the FAO, at which place the FAO organized, at which place the FAO organized the opening ceremony for the International Year of Millet? तो 2023 जैसा कि आप सब लोगों को पता है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट है, और एट विच प्लेस FAO ने डिक्लेयर किया है ऑर्गेनाइज द ओपनिंग सेरेमनी, तो ये है रोम में, इटली। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, FAO का हेडक्वार्टर भी रोम में ही है, रोम इटली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यू फीफा रैंकिंग विच फुटबॉल टीम इज प्लेस्ड एट द टॉप, तो ब्राजील टॉप पे है फीफा रैंकिंग के थ्रू। बट अगर फीफा का वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वर्ल्ड कप विनर इज अर्जेंटीना। वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन ग्लव किसको मिला, कौन जीता, रनर अप कौन रहा, यंगेस्ट प्लेयर कौन रहा, ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है आपको पता होनी चाहिए। नेम द अमेरिकन बॉर्न स्वीडिश पोल वॉल्टर हु हैज बीन नेम्ड एज द 2022 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। सो सी हियर द नेम, अमेरिकन बॉर्न स्वीडिश पोल वॉल्टर, अमेरिकन बॉर्न है बट अमेरिका का नहीं है, स्वीडन का है, पोल वॉल्टर है। पोल वॉल्टर क्या होता है, पोल वॉल्टर वो होता है पोल को लेके जो लंबी छलांग मारते हैं। तो इनको मिला है क्या, इनको मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 के लिए। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, अरमांड डुप्लांटिस, अरमांड डुप्लांटिस, डुप्लांटिस, अरमांड डुप्लांटिस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर स्वीडन के हैं, ठीक है। पोल वॉल्ट इनका स्पोर्ट है, इवेंट है। नेम द अमेरिकन हर्डल एंड स्प्रिंटर हु हैज बीन नेम्ड एज द 2022 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, फीमेल कैटेगरी में। सो दैट वाज द मेल कैटेगरी, अरमांड डुप्लांटिस। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो ये अमेरिकन हर्डलर हैं, स्प्रिंटर हैं, इनका नाम है मैकलॉगलिन लेब्रोन, ओके, MC लेब्रोन, आप याद रख सकते हो, MC लेब्रोन को फीमेल कैटेगरी में बेस्ट वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been awarded as the Golden Boot Award in the FIFA World Cup 2022? किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं। तो किलियन एम्बापे फ्रांस, जिसने भी वर्ल्ड कप फाइनल देखा होगा, शानदार इन्होंने उस वर्ल्ड कप में 5 गोल किए थे इंक्लूडिंग द पेनल्टी कॉर्नर लास्ट का जो था। तो ही हैज बीन अवॉर्डेड एज द गोल्डन बूट, गोल्डन जो बॉल का अवार्ड है वो अर्जेंटीना के जो कैप्टन थे लियोनल मेसी, उनको दिया गया है। और गोल्डन ग्लव की बात करें तो अर्जेंटीना के ही गोलकीपर हैं एमी मार्टिनेज, इन भाई साहब को गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है। Who has been awarded as the young player of the tournament award in FIFA World Cup 2022? So young player of the tournament award दिया गया है एंजो फर्नांडिस को, young player of the tournament एंजो फर्नांडिस, ओके। इसके साथ अगर हम देखें तो लियो वराडकर, एन इंडियन ओरिजिन लीडर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आयरलैंड। तो लियो वराडकर, लियो वराडकर इंडियन ओरिजिन के हैं और आयरलैंड के जो है प्रधानमंत्री बने हैं ये भाई साहब। लियो वराडकर आयरलैंड के हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल माइग्रेंट डे वाज ऑब्जर्व, तो 18 दिसंबर, ओके। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अभी UN रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला था माइग्रेशन के लिए, एंजेला मर्केल को, ठीक है। ये चीजें याद रखना, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ऑन विच डे, ऑन विच डे यूनिसेफ डे वाज ऑब्जर्व, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, ओके। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओ, और नहीं पता तो सर्च करो, गूगल करो, भूलोगे नहीं कभी, मैं बता दूंगा अभी फिर भूल जाओगे, थोड़ा खुद से मेहनत करो। हु टॉप द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, तो ये कौन है,
Ursula von der Leyen, who topped the Forbes 2022 list of the world's 100 most powerful women. Ursula von der Leyen. Which word has been won the Oxford Word of the Year 2022 for the first time in the history? Oxford Dictionary allowed the public to vote on the 2022 Word of the Year. तो word है Goblin Mode. Goblin Mode Oxford Word of the Year select हुआ है. Who has been titled the Person of the Year 2022 by Time Magazine? तो Volodymyr Zelensky. Zelensky साहब कौन है? You must have been knowing by now. The Zelensky is the president of Ukraine. Okay. What is though he has been given title the Person of the Year by the Time Magazine. Okay. What is the name of Peru's first female president? तो पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है डायना बोलुआर्टे. डायना बोलुआर्ते. ओके, डीना बोलुआर्ते पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं. ऑन विच डे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? 2 दिसंबर. 2 दिसंबर. तो 2 दिसंबर याद रखो, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे. ओके. और ऑन विच डे द वर्ल्ड एड्स डे वाज ऑब्जर्व्ड? 1 दिसंबर. तो आप सब लोगों को तो इतना तो याद होगा कि वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है. उसके जस्ट अगले दिन अपना हो जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे. 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे. ठीक है, और इस तरीके से याद रखो चीज़ों को. ठीक है भाई. 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे. ह्यूमन राइट्स डे के बाद में बच्चों ह्यूमन राइट्स डे हुआ 10 दिसंबर. देन जो यूनिसेफ डे होता है दैट इज ऑन द 11 दिसंबर. ठीक है. Who has been appointed as the Prime Minister of Israel? तो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू साहब, भाई साहब जो हैं फिर से एक बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. Who has been elected as the new Prime Minister of Fiji? सितिवेनी राबुका. सितिवेनी राबुका. सितिवेनी राबुका फिजी के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. Who has been elected as the Prime Minister of Nepal? तो पुष्प कमल दयाल प्रचंड. प्रचंड भाई साहब फिर से एक बार नेपाल के जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. ठीक है. विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर द फॉसिल फ्री स्टील विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन स्टील? तो सब लोगों को पता है कि ग्रीन स्टील बनाने वाला स्वीडन विश्व का फर्स्ट कंट्री बन गया है. तो ग्रीन स्टील स्वीडन. स्वीडन कहाँ है? स्वीडन कहाँ है? याद करो स्वीडन कहाँ है? स्वीडन इज इन द नॉर्डिक कंट्री. नॉर्डिक कंट्रीज में कितने कंट्रीज आते हैं बताओ मेरे को. नहीं पता ना, याद करो. अगर नहीं पता तो फिर वो ट्रिक वाली वीडियो देखो एक जो है. ठीक है, मैंने निमोनिक्स बना के आपको एक्सप्लेन किया है कि नॉर्डिक कंट्रीज में कौन सी आती हैं. तो इसकी ट्रिक है फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन. ओके, सो दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज. ठीक है. तो वो जो निमोनिक्स बना के जो ट्रिक्स बना के जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हो. इस तरीके से मैंने बहुत सारी शॉर्टकट्स के थ्रू आपको जो है चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करी है. तो नॉर्डिक कंट्री स्वीडन इज अ नॉर्डिक कंट्री. एंड what other countries comprise to the Nordic countries? The trick is finds, Finds, finds. Okay, Finland, Iceland, Norway, Denmark and Sweden. Okay, at which venue FIFA World Cup 2022 was held? So it was held in Qatar. Okay, how many team participated in the FIFA World Cup? 32 countries ने participate किया. Okay, 32 कंट्री ने FIFA World Cup में participate किया था. इंडिया ने participate किया नहीं किया भाई. इंडिया के बस की बात कहाँ क्वालिफाई करना. कौन जीता इसको फीफा वर्ल्ड कप को? तो अर्जेंटीना जीता. हाउ मेनी टाइम अर्जेंटीना हैज वॉन? तीसरी बार अर्जेंटीना जीता है. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. सपोज बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे, बीपीएससी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अर्जेंटीना हैज वॉन द फीफा 2020 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए भाई. पहली बात, जैसे ही अगर किसी ऑप्शन में मैं आपको आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ओके, इफ इन इवन इफ द चेयरमैन as going by the tweets of the chairman sahab, if there will be the twisted question, okay, the analytical question, or suppose for that sake the UPSC kind of question, that is the based on statement based question. तो अगर फैक्ट अगर आ रहा है कोई तो तुरंत यार अपना ना कान एकदम खड़े कर लो. ओके, एंड बी अवेयर, बी कॉशियस कि यहाँ पे गलती हो सकती है. तो अगर तो अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये वर्ल्ड कप जीता है. पहली बार अगर आता है तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. 1978, 86 एंड 2022. Who has been awarded as the golden ball? तो मैंने बता चुका हूँ आपको, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी. Who has been appointed as India's second CDS? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब जो है प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे. ठीक है.
तो अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है दूसरे CDS बने हैं। Who has been appointed as the new Attorney General of India for a period of 3 years? तो new AG R Venkat Ramani. R Venkat Ramani has been appointed as the new Attorney General of India for a period of 3 years. ठीक है, अब अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 विल बी अकॉर्डेड टू विच एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड? आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पहली बार किसी फीमेल को ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है? नहीं। कौन सी बार दिया जा रहा है बताओ, और नहीं पता तो पिछली वीडियो देखो, अक्टूबर नवंबर मंथ में अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। नेम द वेटरन बॉलर द लीडिंग द विकेट टेकर इन द वुमेन्स इंटरनेशनल कैटेगरी, जिन्होंने कि अभी अपना जो है रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो जल्दी बताओ कौन से हैं, स्क्रीन पर देख लिया होगा। जुलन गोस्वामी ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, सी इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द ODI। ओके, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन चंडीगढ़ हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? तो भगत सिंह। तो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम हो गया भगत सिंह एयरपोर्ट। ओके, तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑनरेबल भगत सिंह। नेम द फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हु हैज बीन chosen to be the president of स्पोर्ट्स फेडरेशन हॉकी इंडिया? दिलीप तिर्की को स्पोर्ट्स फेडरेशन हॉकी इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश MP the ASI in its recent exploration has found the ancient caves, okay, ancient caves and temples, remains of Buddhist structure and mural inscriptions bearing names of cities like Mathura and Kausambi, old script? तो बांधवगढ़ में ASI को मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में आता है, ASI को ये एक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनमें कि ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज बीन अप्रूव्ड 54th टाइगर रिजर्व। ओके, कहाँ पे है? बुंदेलखंड में, यूपी में, रानीपुर टाइगर रिजर्व। विच स्टेट ऑफ इंडिया became the first state in the country to start an encyclopedia on tribal communities to document their age old unique tradition? उड़ीसा ने ट्राइबल्स के एज ओल्ड यूनिक ट्रेडिशन को डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है। नेम द इंडियन फुटबॉल कैप्टन टू whom the world football governing body FIFA has given glowing tribute and honored him by producing a 3-part documentary on his incredible career? सुनील छेत्री साहब बहुत ही कमाल के बंदे हैं। आप इनकी अगर वीडियोस देखोगे, इनके इंटरव्यूज देखोगे तो यू विल गेट टू नो हाउ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ ही इज डिस्पाइट बीइंग एस फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। ओके, एंड ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड। एंड तो इनको जो है फीफा ने ऑनर किया है, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के इनके करियर को, इनके स्ट्रगल को दिखाया गया है सुनील छेत्री साहब के, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्वच्छ टॉय कैथॉन अंडर द स्वच्छ अमृत महोत्सव? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ। ओके, तो महुआ ने क्या किया, महुआ बोलते हैं इसको बेसिकली, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वच्छ टॉय कैथॉन अंडर द स्वच्छ अमृत महोत्सव? ओके, सो नाउ नेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट battlefield where the Indian Army has activated satellite broadband based internet service on September 18, 2022. सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है, एक सेकेंड, जस्ट आई विल टेक अ सेकेंड। Name the world's highest battlefield where the Indian Army has activated satellite broadband based internet service on September 18, 2022. So that is Siachen Glacier. Name the Indian naval ship which was decommissioned on September 19, 2022 after rendering 32 years of glorious service to the nation? INS Ajay। INS Ajay को decommission कर दिया गया है 32 साल की glorious सर्विस के बाद में। ठीक है। Name the Indian comedy king who passed away at the age of 58 on September 21, 2022? राजू श्रीवास्तव। काफ़ी दुखद घटना थी, कार्डियक अरेस्ट में इनकी डेथ होगी। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने, काफ़ी इनको बचाने की कोशिश करी गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए, राजू श्रीवास्तव। विच गुजराती मूवीज हैज बीन अनाउंस्ड एज
इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2023, तो द मूवी का नाम है चेल्लो शो। ओके, चेल्लो शो का मतलब होता है पहला शो, द फर्स्ट शो। तो ऑफिशियल एंट्री इंडिया की गुजराती मूवी है द चेल्लम शो। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व वुड बी सेटअप, तो तमिलनाडु में इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर गल्फ ऑफ मन्नार में जो है बनाया जा रहा है। विच with which company the defense ministry has signed a 1700 crore contract to acquire the supersonic surface to surface cruise missile for frontline warship, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, द डिफेंस मिनिस्ट्री has signed 1700 करोड़ की डील साइन करी है। Who has become the first Indian to win 4 medals at वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते बजरंग पूनिया साहब ने। अभी you must have seen the visuals that Bajrang Punia along with Sakshi Malik and Venus Fogart were protesting at the Jantar Mantar site because of there were various issues in the Wrestling Federation of India, and the issue has been sought out and the committee has been set up, and that committee is being headed by the Mary Kom, the decorated athlete of the India ever produced. Mary Kom is heading that committee which will investigate the charges put out by these wrestlers. Okay, सो अब ये चीज़ याद रखना आप जो है कि दो रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, इंडिया विन द 4 मेडल्स। नेम द चेस प्लेयर फ्रॉम बेंगलुरु हु हैज़ बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ऑन September 15, 2022। तो प्रणव आनंद जो है 76th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, बेंगलुरु से हैं, ठीक है। September 15, 2022, 76, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये 76th ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव आनंद। इससे पहले 75th कौन थे उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज करंट अफेयर की मैगजीन्स में दोनों दे रखे हैं। इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ 2023 आउट ऑफ दिल्ली टू विच एरिया, तो दैट इज द परेड विल नाउ हेल्ड एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन अ रोटेशनल बेसिस एंड द वेन्यू विल बी चेंज्ड एवरी ईयर। ओके, पहले क्या होता था कि पहले जो आर्मी डे की जो परेड होती थी वो दिल्ली में ही होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो हर ईयर चेंज होती रहेगी, रोटेशनल बेसिस पे चेंज होती रहेगी। तो अब कहाँ करी गई, सदर्न कमांड में वो सेलिब्रेट करेगी। द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक हैज बीन कैंसिल्ड रिसेंटली बाय द आरबीआई, तो लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का जो आरबीआई ने अभी लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, विच इंडियन सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म कैपिटल, देख चुके हैं हम वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड चीता इन विच नेशनल पार्क अंडर प्रोजेक्ट चीता, तो दैट इज द कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। कितने करे गए, 8 करे गए। कहाँ से करे गए, कौन से करे गए, सारी वीडियोस आप अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर की वीडियो जो है आप प्लीज उसको देखो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एट प्लेस इन आंध्र प्रदेश द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, हैज लॉन्च्ड द प्री प्रोडक्शन रन ऑफ इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंडिया की पहली लिथियम आयन बैटरी बनाने की जो फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश करी जा रही है। कहाँ पे, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ओके, नेम द अडानी ग्रुप चेयरमैन हु with the net worth of $153.9 billion has become the world's second richest after overtaking the Louis Vuitton बर्नार्ड अर्नोल्ट एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम। तो गौतम अडानी, अभी आपने देखा होगा, अभी अखबार अगर पढ़ रहे हो तो हिंडसबर्ग ने किस तरीके से चार्जेस लगाए हैं और एक ही दिन में अराउंड 1.53 लाख करोड़ की स्टॉक मार्केट में जो है गिरावट दर्ज की गई है अडानी ग्रुप के में, ठीक है। अखबार पढ़ते रह गए थोड़ा, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। अगर आपको एक्चुअली सिर्फ मेंस भी निकालना है, सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, प्रीलिम्स निकाल के एक सेटिस्फेक्शन लेना है तो, बट आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू बी लॉजिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, you should get your basics very strong, and that too from the perspective of the syllabus, and for that newspaper is a very important thing. Okay, so till now there was a provision that fixed pattern of question was being asked, but now we can expect at least for the future examination the change in the pattern. Okay, so for that newspaper is a very important thing vis-a-vis current affair wali thing. On which day Engineers Day is observed in India every year? 15 September, birth anniversary of M Vishwavaraya. Okay, 15 सितंबर को इंजीनियर डे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ डे ऑफ एम विश्ववरैया। ओके, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन द 53 kg कैटेगरी?
तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है विनेश फोगाट ने. सी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट दैट जंतर मंतर साइट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ब्रजभूषण. Okay, so she became the first Indian woman wrestler to win 2 medals at the championship. First Indian woman wrestler to win 2 medals at the world championship after winning the bronze medal in the 53 kg category, Vinesh Fogart. Government of which state has announced school breakfast program with the aim to alleviate hunger? Tamil Nadu. The scheme is applicable to the student studying from 1 to class 5th in the state-run primary school. तो अब मिड डे मील में क्या होता था, अभी तक लंच दिया जाता था, बट तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट को भी चालू कर दिया है. वेस्ट बंगाल ने क्या किया है कि एग एंड मीट को भी उसने मिड डे मील में इंक्लूड किया है, मीट को भी उसने मिड डे मील में इंक्लूड किया है. तो तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट को 1 to 5 स्टूडेंट क्लास 5 के लिए प्राइमरी स्कूल पे लागू किया है. व्हाट इज द थीम ऑफ द आयुर्वेदा डे? आयुर्वेदा डे मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया, धन्वंतरी जी की जो जयंती है उस पर मनाया जाता है. ठीक है, 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर को आयुर्वेदा डे मनाया जाता है. उसकी थीम क्या थी? जो उसकी थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेदा. धन्वंतरी जयंती हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 2016 एज आयुर्वेदा डे. ठीक है, द मेन इवेंट विज्ञान भवन में आयोजित किया गया. ठीक है, इसके साथ अगर हम चलें तो नेम द सीनियर एडवोकेट हु इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर के.वी. वेणुगोपाल वेकेट द पोस्ट ऑफिस. तो मुकुल रोहतगी. नेम द सीनियर एडवोकेट हु इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द 14th Attorney General of India of after K.V. Venugopal vacate the post. This will also be second tenure as the Attorney General of India. तो मुकुल रोहतगी जो है अटॉर्नी जनरल बन गए हैं के.वी. वेणुगोपाल के बाद में. बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम. तो फल्गु नदी के ऊपर गयाजी डैम पे विष्णुपुर टेम्पल में हमेशा पानी बना रहे हैं, इसके लिए इन्होंने रबर डैम बनाया है. ये सबसे कंट्री का सबसे बड़ा रबर डैम है, लेकिन ये सबसे पहला रबर डैम नहीं है, याद रखना. तो क्वेश्चन अगर आता है कि बिहार गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट रबर डैम ऑन द फल्गु रिवर, देन स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. इट इज द सेकंड रिवर, हाउएवर इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर. जो पहला है वो आंध्र प्रदेश ने बनाया था. ठीक है. इन विच स्टेट 36 नेशनल गेम ऑर्गेनाइज? तो गुजरात में. विच कंपनी on September 6, 2022 got the emergency use authorization from the DGCA for the international COVID-19 vaccine? Bharat Biotech. ठीक है, this will be India's first nasal vaccine against the coronavirus. Okay, भारत बायोटेक ने नासल वैक्सीन बनाई, नाक में डालने वाली. अभी तक क्या होता था, इंजेक्शन लगता था हमारे जो है, ठीक, कहीं पे भी लगता था, तो ये नासल के थ्रू जाएगी. न्यू दिल्ली हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स विल बी रिनेम्ड एज कर्तव्य पाथ. अब तक क्या था, जो राजपथ था अपना इंडिया गेट से लेके और राष्ट्रपति भवन तक का, जो भी लोग इंडिया गेट आप में घूमने गए उन्होंने देखा होगा कि इंडिया गेट एक तरफ में राजपथ है, उसके बीच में जो रोड है उसको राजपथ बोला जाता था, और उसके चारों तरफ जो है लॉन्स थे. अब जहाँ पे रिपब्लिक डे परेड होती है, अब उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है. ठीक है. लीजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी हु पास्ड अवे ऑन September 7, 2022 वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो भोजपुरी फोक डांस, लौंडा नाच. ये रामचंद्र मांझी अभी इनकी डेथ हो गई. भोजपुरी फोक डांस संबंधित है लौंडा नाच. ठीक है, लौंडा नाच एक प्रथा है भोजपुरी में, उससे संबंधित है जो है रामचंद्र मांझी. He was one of the member of the Bhikhari Thakur's drama team. He was one of the member of Bhikhari Thakur's drama team and was awarded as a Sangeet Natak Academy Award 2017, which was awarded India's 4th highest civilian award पद्म श्री in 2021. इनको 2021 में पद्म श्री भी दिया गया था. मांझी was born in ताजपुर, सारण, छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 1925 इन दलित फैमिली. ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट के थे. पिछली साल पद्म श्री भी दिया गया इनको. ठीक है, क्या नाम है इनका? रामचंद्र मांझी. विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो हॉकी वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा भाई? हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा. उड़ीसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में, और उन्होंने बिरसा मुंडा नाम का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का एक जो स्टेडियम बनाया है वो हॉकी उड़ीसा ने होस्ट किया. अनफॉर्चुनेटली अपनी इंडियन जो हॉकी टीम है वो नॉकआउट से बाहर हो गई हॉकी वर्ल्ड कप में, और वो जो है हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी. तो भी फाइनल वर्ल्ड कप हॉकी का होने वाला है, देखते हैं हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीतता है. हाउ मेनी स्टेट्स विल बी कवर्ड विद भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च्ड बाय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी? तो 12. हाउ मेनी स्टेट्स विल बी कवर्ड? तो 12 स्टेट विल बी कवर्ड. कहाँ से कहाँ तक है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक है. कल उसका समापन है, कल मतलब 30 जनवरी को समापन है. आज
29 जनवरी को राहुल गांधी ने लाल चौक पर झंडा फहरा के अपनी जो यात्रा को कंप्लीट किया, कल उसका समापन है। ठीक है, तो 12 स्टेट से होके गुजर रही है ये जो है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, 12 स्टेट कवर किए हैं इस यात्रा ने। इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी विल बी ओपन इन विच स्टेट, तो लद्दाख में है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी विल बी ओपन इन विच स्टेट, इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, तो लद्दाख। कहाँ पे है? चांगथांग, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेम द फॉर्मर ऑलराउंडर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, सुरेश रैना। रैना भाई साहब और धोनी भाई साहब ने एक साथ संन्यास लिया था। ठीक है, सुरेश रैना अब सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी दिनों तक खेले थे। ऑन विच डे टीचर्स डे वाज ऑब्जर्व्ड इंडिया एवरी ईयर, सबको पता है 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को टीचर्स डे मनाया जाता है। नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप हु डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, तो सैरस मिस्ट्री। काफी दुखद घटना थी, सैरस मिस्ट्री साहब महाराष्ट्र में जो है कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ठीक है, नेम द इंडियन एथलीट हु हैज गिफ्टेड हिज गोल्ड मेडल विनिंग जेवलिन टू द ओलंपिक म्यूजियम इन लुसाने। नेम द इंडियन एथलीट हु हैज गिफ्टेड हिज गोल्ड मेडल विनिंग जेवलिन टू द ओलंपिक म्यूजियम इन लुसाने स्विट्जरलैंड, तो नीरज चोपड़ा भाई साहब। गोल्ड जेवलिन थ्रो में तो अपने जो है नीरज चोपड़ा भाई साहब का ही नाम आता है। इन्होंने क्या किया है कि जिस मेडल, जिस भाले से, जिस जेवलिन को उन्होंने फेंक के गोल्ड मेडल जीता था, उसको उन्होंने लंदन म्यूजियम, ओलंपिक म्यूजियम में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो विच स्टेट यूटी हैज मेड द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी इन ऑल सीरियस क्रिमिनल केसेस, तो दिल्ली। विच स्टेट यूटी हैज मेड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी इन ऑल सीरियस क्रिमिनल केसेस, दिल्ली ने मैंडेटरी कर दिया है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सारे क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल केस में। विच टीम हैज वॉन द डूरंट कप 2022 फुटबॉल, बेंगलुरु एफसी। ठीक है, बेंगलुरु एफसी जो है डिफीटिंग मुंबई सिटी को हरा के जो है डूरंट कप जीता है। डूरंट कप फुटबॉल, फुटबॉल से होता है। बेंगलुरु ने मुंबई को हरा के डूरंट कप जीत लिया है। ऑन विच डे वर्ल्ड रेबीज डे वाज ऑब्जर्व टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट रेबीज, तो रेबीज के बारे में आप सब लोगों को पता है कि 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज इज कॉज्ड बाय द Lisa virus, including the rabies virus and Australian bat Lisa virus. It's spread when an infected animal bite or scratch a human or other animal. More than 99% of rabies cases are the direct result of the dog bite. And अगर किसी को रेबीज हो गया तो there is no medication of that, और उस आदमी की मृत्यु हो ही जाती है, क्योंकि उसको जो है फोबिया हो जाता है हवा और पानी से। ओके, तो वैक्सीनेशन जुलाई 6, 1885 लुई पास्चर and his colleague injected the first 14 daily doses of rabbit spinal cord suspensions containing progressively inactivated rabies virus into a 9-year-old baby. Goa has become the first rabies free state of India. Goa has become the first rabies free state of India 2021 में। इसके साथ अगर हम देखें तो which international financial institution has announced a $14 billion support for food security in the Asia Pacific, which is threatened by the Russia-Ukraine war and global climate condition. The funding for this period is 2020, 22, 25. Okay, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $14 बिलियन की मदद दी है एशिया पैसिफिक कंट्रीज में जो हंगर है उसको कंट्रोल करने के लिए, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो किसने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप सब लोग बताओ? ओके, आई थिंक इट्स हेडक्वार्टर इज इन मनीला। ओके, फिलीपीन में 19 दिसंबर 1966 को उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। ऑन विच डे वर्ल्ड टूरिज्म डे वाज ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 सितंबर। सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ पे जाते हैं? सबसे ज़्यादा टूरिज्म अपने जो है यूएई में जाते हैं, देन उसके बाद में यूएसए में जाते हैं। सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा टूरिज्म यूएसए से आते हैं। किस स्टेट में आते हैं? फॉरेन ट्रैवलर, फॉरेन टूरिज्म तो पंजाब में आते हैं एनआरआई की वजह से, देन महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आपके तमिलनाडु में आते हैं, देन उत्तर प्रदेश में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूरिज्म स्टैट्स रिपोर्ट। हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? Giorgia Meloni. Giorgia Meloni has become the first female prime minister of Italy. Okay, Giorgia Meloni. तो इसको आप याद रखेंगे, इसको नहीं बोलोगे। Then which country has granted Russian citizenship to the former US security contractor Edward Snowden? तो
रशियन सिटीजनशिप जो है ग्रांट करी गई है यूके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को। स्नोडेन का आप सबको पता होगा कि इन्होंने जो है ये जो है डॉक्यूमेंट लीक्स करने के लिए और गवर्नमेंट बेसिकली विशल ब्लोअर who exposed the US government, and because of that he was declared as a criminal in the US, and now he has been granted a Russian citizenship. Okay, एडवर्ड स्नोडेन को रशियन सिटीजनशिप दी गई है। Scientists from which country have successfully cloned the wild Arctic wolf Maya for the first time in the world? तो माया नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि चाइना नहीं हो सकता है, इसका आंसर चाइना ही है। माया वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ माया को क्लोन किया है किसने? चाइनीज साइंटिस्ट ने। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट वुमेन एशिया कप 2022? तो वुमेन एशिया कप 2022 विल बी होस्टेड बाय बांग्लादेश। ओके, सो वुमेन एशिया कप विल बी होस्टेड बाय बांग्लादेश। On which day International Day of Sign Language was observed? 23 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये कब डिक्लेयर किया गया? 23 सितंबर। ठीक है। 23 मार्च शहीद दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, ये चीजें याद रखना। विच कंट्री हैज वॉन द सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप? बांग्लादेश। सैफ वुमेन चैंपियनशिप बांग्लादेश। वुमेन चैंपियनशिप ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। ठीक है। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज ऑब्जर्व? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज ऑब्जर्व ऑन 21 सितंबर। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज ऑब्जर्व ऑन 21 सितंबर। ठीक है। विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर ऑफ श्रीलंका ओवरटेकिंग चाइना? Which country has emerged as the largest bilateral lender for Sri Lanka overtaking China? तो इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर मतलब कि सबसे ज्यादा उधार देने वाली या मदद करने वाले देशों में चाइना को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। हम सबको पता है कि श्रीलंका किस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो फॉरेक्स रिजर्व हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। इसके चक्कर में वहाँ पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी और काफ़ी ज़्यादा क्योटिक और पॉलिटिकल टर्मोइल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ओके, तो इंडिया ने चाहे उसकी बहुत हेल्प करी है श्रीलंका की जो है, चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट देने में करी हो, चाहे वो ग्रांट लोन देने में, चाहे ग्रांटिंग द मनी, चाहे मेडिसिन, चाहे कुछ भी और अदर लॉबिंग into the international organization to give Sri Lanka the loan. So hence India played a responsible neighbor in helping the Sri Lanka out of this economic crisis. Okay, the country has provided total 968 million US dollar in loans to the island nation in 4 months. So it's a big amount. Okay, so India surpassed the China. On which day International Day of the Preservation of the Ozone Layer was observed? तो 16 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन 16 सितंबर क्यों मनाया जाता है? बिकॉज 16 सितंबर 1987 को हुआ क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, Astana has been announced as the new capital of which country? Kazakhstan. तो Astana has been declared new capital of Kazakhstan. ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 5 नेशंस। आपको पता होना चाहिए कि 5 नेशंस कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार मैप में देख लेना। मैप देखने का आलस मत किया करो भाई लोगों, मैप देखते रहा करो, मैप देखने में ही ज्ञान है। Name the tennis player, a 20-time Grand Slam winner who announced retirement from the tennis on September 15, 2022. So it was a historic moment in the history of not only the tennis but also in the history of sports, because the Roger Federer, the all-time great athlete, retired from the tennis. Okay, आप सब लोग ने, हम लोग सब लोगों ने जब से अपनी होश संभालना शुरू किया है तब से हम देख रहे हैं कि रोजर फेडरर जो है खेल रहे हैं और पीक पे खेल रहे हैं और पीक पे उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, तो ये देख लेना अभी। और दूसरा ये देख लेना कि जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम है इस साल के कौन कौन जीता है। इस बार अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन को, आज की बात है, नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं और उन्होंने जो है राफेल नडाल के
22 ग्रैंड स्लैम्स की बराबरी कर ली है और उनका ये 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना एक बार। हालांकि अब तो पेपर प्रिंट हो चुका हुआ मोस्ट प्रोबेबली, तो अब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? इंडिया ने होस्ट किया था उसको। जीता किसने था? स्पेन जीता था। कहाँ कहाँ होस्ट किया गया था? मुंबई, भुवनेश्वर और गोवा में ये जो है तुम्हारा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, तो इंडिया में किया गया था। ठीक है, और इसके साथ अगर आप देखें तो ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वाज ऑब्जर्व? 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वाज ऑब्जर्व। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, 2007 में यूएनजीए रिजॉल्व टू ऑब्जर्व 15 सितंबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। थीम याद रख लेना 15 सितंबर। 16 सितंबर को क्या होता है? 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ये आप सब लोगों को पता होगा। उससे एक दिन पहले अपना क्या होता है? उससे एक दिन पहले अपना है वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। ओके, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 16 सितंबर ओजोन डे, ओजोन से एक दिन पहले इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो आपकी 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स हैं, ये जो है अगले जो लगभग हाफ करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। जो नेक्स्ट जो एमसीक्यू की जो सीरीज आएगी वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करी जाएगी। ओके, तो अभी इसको आप डबल पे देख सकते हो, और इसके अलावा कुछ और 1-2 और वीडियो लूँगा मैं, जिसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करूँगा, जैसे कि बिहार की रैंकिंग किस इंडेक्स में कितनी है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, बिहार की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे उस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी। तो करंट अफेयर की अराउंड 4 से 5 वीडियोज होंगी जो आपके पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगी। इसके अलावा जो आपकी जो निमोनिक्स पे बेस्ड जो वीडियोस डाली गई हैं, कलाम पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ कलाम पीसीएस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, और इसलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।